कर लेते हैं स्टेज 2 की। अ ट्यूमर इन्वॉल्व द यूट्रस एंड द सर्वाइकल स्ट्रोमा। स्टेज 3 थर्ड ए बी C1 एंड C2। ए में क्या होगा, ट्यूमर में सेरोसा और द एंडी नेक्सिया। बी में क्या होगा, वेजाइनल एंड और पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट। C1 में क्या होगा, पेल्विक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। C2 में क्या होगा, पैरा एरोटिक लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट विद और विदाउट पेल्विक नोड इन्वॉल्वमेंट। स्टेज 4 में क्या होगा, 4A ट्यूमर इन ब्लैडर म्यूकोसा एंड और बॉवल म्यूकोसा। बी में क्या होगा, डिस्टेंट मेटासिस इन्वॉल्विंग एब्डोमिनल मेटासिस एंड फर्स्ट और लिंगुअल लिम्फ नोड। डायग्नोसिस डायलिटेशन DNC करेंगे, रिमूवल ऑफ एंडोमेट्रियम। ठीक है, द टिश्यू इज देन एग्जामिन्ड हिज टिश्यू histologically for the characteristics of the cancer. If cancer is found, medical imaging may be done to see whether the cancer has spread or induced other tissues. एग्जामिनेशन EB है, PEAP है, पेल्विक एग्जामिनेशन है, TBS है, MRI है, CT स्कैन है। ठीक है, उसके बाद हिस्टेरोस्कोपी है, CA-125 है, ट्यूमर मेकर है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रीटमेंट में क्या करोगे, सर्जिकली जो सर्जरी ट्रीटमेंट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ हिस्टेक्टोमी इन्वॉल्व द बायलैटरल सल्पिनोग्राफी विच इज द रिमूवल ऑफ यूट्रस एंड द बोथ द ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब lymphadenectomy. Surgery can be followed by the radiation therapy and chemotherapy in case of high risk or high grade cancer. This is also known as adjuvant therapy or hormonal therapy. Progesterone ovarian tumor, also known as ovarian neoplasm tumors, arise from the ovary. They can be benign or malignant. Benign tumor of the ovary include ovarian cyst. Malignant tumor is known as ovarian cancer. Benign ovarian tumor or ovarian cyst. Ovarian cyst is a fluid filled sac within the ovary. Symptom none, bloating, lower abdominal pain, lower back pain, abnormal uterine bleeding, complication, rupture, twining of the ovary. ठीक है, डायग्नोसिस USG, ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, एनालिसिस, सर्जरी। दो तरीके के होते हैं, फंक्शनल नॉन फंक्शनल। फंक्शनल में फॉलिकुलर सिस्ट, कॉर्पस ल्यूटेम सिस्ट, थीका ल्यूटेम सिस्ट। नॉन फंक्शनल में PCOS। फिर बारी है नॉन फंक्शनल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, चॉकलेट सिस्ट, हेमोग्राफिक ओवेरियन सिस्ट, डर्मेटाइट सिस्ट, ओवेरियन सेरस सिस्टेक्टोमा, ओवेरियन म्यूकोसिस सिस्टेडोमा, पैरा ओवेरियन सिस्ट, बॉर्डर लाइन ट्यूमर सिस्ट। फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट पॉलिकुलर होती है, कॉर्पस ल्यूटियम सिस्ट होती है। ठीक है, और इसमें थीका ल्यूटियल सिस्ट होती है। उसके इसमें क्या होता है, देखो, फॉलिकुलर सिस्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट इन मेंस्ट्रुएटेड वुमेन, फॉलिकुलर कंटेनिंग द ओवम, fertilized egg will rupture during the ovulation. If does not occur, a follicular cyst of the more than 2.5 centimeter diameter may result. Corpus luteum cyst appear after the ovulation. The corpus luteum is a remnant of the follicle after the ovum have moved to the follicle. To this normally degrade within 5 to 9 days. A corpus luteum that is more than 3 centimeters is defined as cystic. Thecal lutein cells occur within the thecal layer of the cell surrounding the developing oocytes. Under the influence of excessive HCG, the thecal cell may proliferate and become cystic. This usually occur on the both ovaries. Polycystic syndrome क्या, polycystic ovary syndrome PCOS symptoms क्या होते हैं, Stan Latin syndrome, functional ovary hyperandrogenism, ovarium hyperthiocrosis, sclerocytic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome is a condition with the woman hormonal disturb. It affects women during their childbearing age up to 15 to 44 years. उसके बाद है many women have PCOS but do not know it. PCOS affects the woman ovaries, the reproductive organ that produce estrogen and progesterone hormone that regulate the menstrual cycle. The ovary also produce a small amount of male hormone called androgen. Ovarian release ova to be fertilized by a means of sperm. The release of an egg each month is called ovulation. FSH and LH control ovulation. FSH stimulate the ovary to produce a follicle and a sac that contain an egg, and the LH trigger the ovary to release a mature ovum. Next अगर मैं बात करूँ, in PCOS many fluids sac grow inside the ovaries. These sacs are actually follicle, each over containing an immediate egg. The egg never mature enough to trigger ovulation. The lack of ovulation alter to the estrogen, progesterone, FSH and LH. Estrogen and progesterone level are lower than the usual, while androgen level are higher than the usual. Extra hormone disrupt the menstrual cycle, so women will PCOS get period than usual. The three main feature of PCOS is in the ovaries: high level of male hormone, irregular or skipped period, cause unknown है, risk factor genes, insulin resistant and inflammation have been all linked to excess androgen production. Gene studies show the PCOS run in the family. Insulin resistant, up to 70% of women with PCOS have insulin resistant when cell cannot use insulin properly. The body is designed for
cannot be used insulin properly, the body demand for insulin increases. The pancreas make more insulin to compensate extra insulin triggers the ovaries to produce more male hormone. Obesity is a major cause of insulin resistance. Both obesity and insulin resistance can increase say for see your risk for to type 2 diabetes. Inflammation. Women with PCOD often have increased level of inflammation. Being overweight can also contribute to inflammation. Symptoms है irregular periods, a lack of ovulation prevent the uterine lining for the shedding every month. Some women with PCOS get fever then 8 periods a year. Having heavy bleeding, the uterine lining build up for a longer period of time, so the menstrual bleeding is stronger. Hair growth. More than 70% of women with PCOS grow more hair on their face and body, including on the back, belly and chest. Acne. Male hormones can make the skin oilier than usual and causes the breaks out of the area like the face, chest and upper back. Weight gain. Up to 80% of women with PCOS are overweight or abuse. Male partner baldness, hair or the scalp gets thinner and fall out. Darkening of the skin. Dark patches of the skin can form in body increases like those on the neck, in the groin and under the breast. Headaches. Hormonal change trigger headache in the woman. Complication. Infertility or fertility problem due to the disrupted hormone menstruation cycle and ovulation, miscarriage, PHI and GDM, metabolic syndrome, heart disease, distracted sleep, apnea, endometrial कैंसर, डिप्रेशिया. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें आपका डायग्नोसिस कैसे करोगे. प्रेजेंस ऑफ 3 मेन फीचर्स. सिस्ट ऑन द ओवेरीज, हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन, इरेगुलर और स्किप्ड पीरियड. ठीक है. सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन, यूएसजी, ब्लड टेस्ट फॉर एंड्रोजन लेवल, कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, ट्राइग्लिसराइड लेवल, एक्सेट्रा. मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, मेंटेन हेल्दी बॉडी वेट, इंसुलिन sanitization, metamorphin to restore menstrual cycle and induce ovulation, reduce the androgen LH. It reduces glucose reduction in the liver. Insulin resistant androgen and LH steroid hormone OCPS are most efficient means of androgen suppressivity. Birth control pills, scans help regulate the menstrual cycle and treat PCOS. Systems like hair growth and acne, a permanent method of hair removal of electrolysis or laser ablation after suppression of hyperandrogenism is also possible. Anti-androgen therapy with स्पायरोलैक्टोन अलॉन्ग विद OCP. उसके बाद है एंटी एंड्रोजन थेरेपी विद स्पायरोलैक्टोन अलॉन्ग विद OCP से असिस्टेड फर्टिलिटी. क्लोमिफेन और गोनाडोट्रोपिन कैन बी यूज्ड टू induce ovulation and is advised for use in patients who wish to become pregnant. Surgery can be an option to improve fertility if other treatments don't work. Laparoscopic ovarian drilling is a procedure in which several punches are made with a laser or thin heated needle in one or both of the polycystic ovaries to restore normal ovulation. Ovarian cancer. It is a cancer that forms in or an ovary. It is a result of proliferation and the abnormal growth of the cells that have the ability to invade or spread to other parts of the body. Risk factor: nulliparity, post-menopause, hormone therapy, fertility medication, genetics, obesity, smoking, low level of vitamin D in the blood, HPV, environmental attack, pesticides, herbicide, chemical in the environment or in the human diet. Next is symptoms: early bloating, abdominal or pelvic pain or discomfort, pain or irregular menstruation or post-menstruation, vaginal bleeding or bleeding after or during the sexual intercourse, loss of appetite, fatigue, diarrhea, indigestion, heartburn, constipation, nausea, etc. ठीक है. ये सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. लेट में ब्लॉटिंग, पेल्विक पेन, एब्डोमिनल स्वेलिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट विद मेटास्टेसिस. टाइप्स ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा, जर्म सेल ट्यूमर, सेकेंड सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर. ठीक है. डायग्नोसिस होती है टिश्यू बायोप्सी, CA-125, USG, ट्रांसवाजाइनल. ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी. स्टेजिंग फिगो है. ठीक है. स्टेजिंग सिस्टम है. स्टेज 1 कैंसर इज कम्प्लीटली लिमिटेड टू ओवरी. ठीक है. IA1 ट्यूमर इज 1 ओवरी. IB इन बोथ ओवरीज. ठीक है. IC मतलब फर्स्ट A, फर्स्ट B, फर्स्ट C. तो फर्स्ट A में ट्यूमर इन फर्स्ट ओवरी, फर्स्ट B ट्यूमर इन बोथ ओवरीज एंड फर्स्ट C ओवरीज एंड ऑन द सरफेस. ठीक है. स्टेज सेकंड में होगा पेल्विक एक्सटेंशन ऑफ द ट्यूमर मस्ट बी कॉन्फाइंड टू द पेल्विस और द प्राइमिनल पेरिटोनियल ट्यूमर इन्वॉल्व वन और बोथ ओवरीज. सेकंड A ट्यूमर हैज इन्वेडेड द फैलोपियन ट्यूब. सेकंड B ट्यूमर हैज इन्वेडेड द बॉवल और ब्लैडर
Second C, tumor cells are present in abdominal fluid. Second stage third, cancer is found outside the pelvis on the retroperitoneal lymph node involving one or both ovaries. Third A, tumor cells are in the lining of the abdomen. B में क्या होगा, tumor in the lining of abdomen is greater than 2 centimeter or large. Next है आपका थर्ड C, tumor invaded the lymph nodes. फोर्थ में क्या होगा, stent metastasis. फिर क्या है, स्टेज 4 डिस्टिंक्ट मेटासिस होता है, ट्यूमर हैज स्प्रेड टू अदर ऑर्गन सच एज द लिवर, लंग एक्सेट्रा. नेक्स्ट में मैं बात करूंगी अबुर्द की. ठीक है, अबुर्द की शब्द की उत्पत्ति अर्ब से हुई है. अर्ब का अर्थ होता है हिंसा. अतः हिंसा के लिए जिसका उदय होता है उसे अबुर्द कहते हैं. चार्यचरक ने अर्ब को त्रिशोत्ती अध्याय में अंतर्गत वर्णन किया. चार्यचरक एवं बिंदुपाक भट्ट ने वृद्धपांग भट्ट ने मांस प्रदोष विकारों के अंतर्गत ही अर्बुद का भी वर्णन किया. सुश्रुत ने छठवीं त्वचा के विकार के अंतर्गत एवं बाघ भट्ट ने मेदु वृद्धि व्याधि के रूप में इसका वर्णन किया है. शारंग संहिता को अबुर्द को ग्रंथि का एक भेद बताया है. निदान और संप्राप्ति क्या है, शरीर के किसी विभाग में बढ़े हुए, ईश्वर ने बताइए, बढ़े हुए दोष मांस को दूषित करके गोल स्थिर अल्प पीड़ा से युक्त आकार में बढ़ा हुआ, बड़ी मूल वाला, धीरे धीरे बढ़ने वाला, न पकने वाला और मांस के वृद्धि के कारण जिसे शोभ को उत्पन्न करता है उसे अबुर्द कहते हैं. चार्यचरक ने 6 प्रकार के बनाए. मांस, पित्त, कफ, मेद, सिरा, मांसज. ठीक है, उसके बाद सुश्रुत ने 6 प्रकार, वात, पित्त, कफ, रक्त, मांस और मेद. ठीक है, अबुर्द के लक्षण, सामान्य लक्षण क्या होते हैं, तो सामान्य लक्षण ने और आचार्य चरक ने क्या क्या बताया. आचार्य चरक ने भी 6 पद बताए, आचार्य सुश्रुत ने भी 6 वेद बताए हैं. पर आचार्य सुश्रुत और आचार्य चरक में क्या भेद है. आचार्य सुश्रुत ने रक्तज माना है, जबकि आचार्य चरक ने क्या माना है, सिराज माना है. ठीक है, अबुर्द के लक्षण क्या होते हैं, गोल होता है. सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या है, गोल होता है, स्थिर होता है, अल्प पीड़ा करने वाला होता है. ठीक है, बड़ा होता है, बहुत गहराई में स्थित होता है, धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है और ना पकने वाले शोध के रूप में बताए. विशिष्ट लक्षण क्या है, इन सभी प्रकार के अबुर्द के लक्षण प्राप्ति के लिए समान है. रक्ताबुर्द क्या होता है, मिथ्या आहार विहार में प्रदुष्ट वात आदि दोष रक्त तथा सिराओं को संपीड़ित तथा संकुचित करके पाक को प्राप्त करते हैं. यहाँ पे श्लोक देखो, दोषा प्रदुक्त रुद्रम सिरायुक्त संपीड़ित संकोचम ग्रस्त पकानम शास्त्राम वम अमुन हराती मांस पिंडम मांस अंकुरे चिरा चित्त माशु प्रद्यम, अर्थात स्त्रावयुक्त शीघ्र वृद्धि करने वाले मांस अंकुर से व्याप्त मांस पिंड का उच्छेद करते हैं, जिससे निरंतर दूषित रहते बहता है. यह रक्तबुद्ध असाध्य होता है. रक्त क्षय रूपी उपद्रव में पीड़ित होने के कारण रोगी में पांडु हो जाती. मांस अवरुद्ध मुष्ट प्रहादिरे आदि भीर अद्रते अंग्रे पासम प्रदुष्टम प्रकोपति शोफनम अवेदनम स्निग्धम अन्य वर्णम अपाकम अश्मोपम अम प्रक्षालयम, अर्थात पुष्टि प्रहर आदि से शरीर प्रदेश पर आघात होने पर अत्यधिक मांस खाने तथा जिसका मांस दूषित होता है उसमें उत्पन्न होता है. स्वल्प पेड़ाकार के स्पर्श में स्निग्ध होता है, स्वाभाविक वर्णयुक्त होता है, नहीं पकने वाला होता है, पत्थर के समान कठिन तथा अल्प प्रक्षालन शोथ. यह मांस अबुर्द असाध्य होता है. निम्नलिखित कारणों से सभी प्रकार के अबुर्द के पाक नहीं होते. कफ की अधिकता, मेद की अधिकता, दोषों की स्थिरता, ग्रथित होने के कारण स्वाभाविक एक रूप यानी की प्रकृति है. साध्यता, असाध्यता में वात, पित्त, कफ और मेद जो है वो साध्य है. रक्त और मांस असाध्य है. अत्यधिक बहने पर मर्म स्थान एवं स्त्रोत्र पर उत्पन्न अचल अबुद्र असाध्य. चिकित्सा सिद्धांत, क्रांति के समान चिकित्सा, शोध के समान चिकित्सा, वर्ण में समान चिकित्सा, अद्भुत के समान चिकित्सा, छेदन कर्म, क्षार का उपयोग, औषधि प्रयोग, ग्रंथि की चिकित्सा के अंतर्गत वर्णित पंचकर्म, शस्त्रकर्म, लेप का प्रयोग करना चाहिए. नेक्स्ट है ग्रंथि. ग्रंथि क्या होती है, ग्रथित अर्थात गांठदार होने के कारण इसे ग्रंथि कहते हैं. निदान क्या है इसका, मतलब संप्राप्ति, निदान सेवन किया, वातादि दोषों का प्रकोप हुआ, मांस, रक्त, कफ, मेद धातु की दृष्टि हुई, उठा हुआ सब प्रतीत हुआ, ग्रंथि शोफ हुआ और ग्रंथि हो गई. ठीक है, आचार्य चरक ने 6 बनाए, वात, पित्त, कफ, मेद, सिरा, मांस, और आचार्य सुश्रुत ने 5 बताए, वात, पित्त, कफ, मेद और सिराज. आचार्य वृद्धपांग भट्ट ने 9 बताए, वात, पित्त, कफ, मेद, सिराज, मांसज, रक्तज और व्रणज. सामान्य लक्षण क्या है, गांठदार होना. इनका सामान्य लक्षण होने के इन सभी
क्या होता है कि विशिष्ट लक्षण सामान्य ग्रंथि के समान होते हैं। विशिष्ट लक्षण क्या है? वात ग्रंथि में खींचने, ईशुश्रुत ने बताया, खींचने पर लंबा होना, पीड़ा युक्त होना, सुई चुभने की वेदना, काटने में छेदने की वेदना से युक्त, वर्ण में कृष्ण और स्पर्श में कठिन, जल में भरी बस्ती मतलब मूत्राशय के समान तनी हुई, फुटने पर स्वच्छ रक्त स्राव मतलब साफ होगा। पित्तज में क्या होगा? अत्यधिक दाह होगा, संताप होगा, चोट शीघ्र पाक होना, जलता हुआ प्रतीत होना, वर्ण में रक्त या पीला होना, फूटने पर अत्यधिक उष्ण रक्त का स्राव होना। कफज में क्या होगा? स्पर्श में शीत होगा, प्राकृतिक वर्ण का होगा, अल्प पीड़ा युक्त होगा, अत्यधिक कंडू युक्त होगा, पत्थर के समान कठिन होगा, देरी से वृद्धि करने पर फूटने पर श्वेत एवं गाढ़ा का स्राव होगा, मतलब जो दस्त होगा, खराब खून होगा उसका, या जो भी उसमें भरा हुआ होता है पुएं वो। ठीक है। मेदज कैसा होगा? शरीर की वृद्धि के बाद साथ बढ़ना एवं शरीर के ह्रास के साथ घटना। ठीक है। स्निग्ध होगा, आकार में बड़ी हुई होगी, तो पीड़ा युक्त होगी, अति कंडू युक्त होगी, फूटने पर तिल की खली एवं घृत के सदृश मेदो स्राव होगा। सिराज ग्रंथि कमजोर एवं दुर्बल मनुष्यों के द्वारा अत्यधिक व्यायाम करने से प्रकोपित वायु सिराओं में आश्रित होती है। प्रकोपित वायु सिराजाल को संपीड़ित, संकुचित एवं शोषित करके गोल एवं उभरी हुई ग्रंथि को उत्पन्न करती है। पीड़ा से युक्त एवं चलायमान होने से सिराज ग्रंथि पर कृच्छ साध होती है, वेदना रहित होती है, स्तन एवं आकृति में बड़ी तथा मर्म स्थानों पर स्थित होने पर असाध्य होती है। मांस व स्रोतस के वेदन होने पर सिरा ग्रंथि की उत्पत्ति होती है। मांसज के मांसवर्धक आहार के सेवन से मांस दूषित हो जाता है, स्पर्श में स्थित होती है, आकृति में बड़ी होती है, कठोर होती है, सिराजाल से एक्सपादित होती है, कवच ग्रंथि के आकार वाली होती है। रक्तज क्या होती है? प्रकटित वायु वातादि दोष होगी, रक्त दोष को दूषित करके रक्त ग्रंथि की उत्पत्ति कहते हैं। इसमें कृमि उत्पन्न होती है जो सिरा एवं मांस में आश्रित होते हैं। संज्ञानाश जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। पित्त ग्रंथि के समान लक्षण पाए जाते हैं। अस्थिगज, अस्थि भंगन एवं विघातज आदि कारणों से उत्पन्न उन्नत और अवनत ग्रंथि बनती है। व्रण का रोहण न होने पर अथवा रोहण में होते ही सभी रसों का सेवन करने वाले व्यक्ति में अथवा आर्द्र वर्ण में बंधन न करने पर अथवा शरीर में अभिघात आदि से कृत रक्त वात के द्वारा सुकर ग्रंथि को उत्पन्न करता है। इसमें दाह एवं कंडू लक्षण पाए जाते हैं। साध्यता कुक्षी उदर गले में स्थित तथा मर्म स्थान नागत स्थूल खर तथा बालक वृद्ध और दुर्बल व्यक्तियों में उत्पन्न ग्रंथि असाध्य होती है। चिकित्सा सिद्धांत रोग के बल की रक्षा करना चाहिए। रोगी के बल की रक्षा करने से सर्वप्रथम बृहति द्वय मतलब बड़ी बृहति देनी चाहिए दोनों। ठीक है। और पीपली और चित्र एवं चित्रक से सिद्ध पुराण घृत से स्नेहन, तत्पश्चात तीक्ष्ण द्रव्यों में वमन एवं विरेचन करके संसर्जन कर्म का प्रयोग करना चाहिए। तेल अथवा घृत वसा या तीनों स्नेहों का पान करना चाहिए। दशमूल सिद्ध चतुर स्नेह एवं स्नेह द्वय का प्रयोग करना चाहिए। स्वर्जी क्षार, मूलक क्षार एवं शंखचूर्ण को पीसकर लेप करना चाहिए। पक्व अवस्था में चिकित्सा क्या करोगे? ग्रंथि को कोष सहित निकाल कर दहन कर्म करने के पश्चात व्रणव्रत चिकित्सा करना चाहिए। उसके बाद है पक्व शस्त्र के छेदन करके कषाय द्रव्य से प्रक्षालन करने के पश्चात मधु एवं घृत का गाढ़ा लेप करना चाहिए। गंधक, अर्क, दुग्ध, हड़ताल, जमाल, गोटा के पीस कर लेप करने से नष्ट होती हैं। नेक्स्ट है विक्रांतगत एवं पटेरी को कांजी में पीस कर लेप करने का प्रयोग करने से कास्ट स्फुट भी नष्ट हो जाता है। यहाँ पे कंप्लीट हो गया।